ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਡਰੇ ਬਹੁਤ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਦੇਵ ਠਾਕੁਰ ਟੂ ਯੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਆਤਮਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ उस आत्मा ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ बॉडी देती कि तू कुड़ी है तो तू कुड़ी बन के रह। जी बिल्कुल। मतलब ये जर्नी एक्सप्लेन करने के लिए तो मतलब मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाएगा, बट तकलीफ़ें बहुत बहुत कुछ बयां कर देती हैं और शायद मैंने बहुत कुछ ट्रैवल किया है इन सब की वजह से। मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल अभी कर भी रहे हैं। सो मेरे लिए फ़िलहाल ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा कहनी आसान है उतना करना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ को वक्त लगता है और तकलीफ़ कहते हैं ना, जितना तकलीफ़ का टाइम जो होता है वो गुजरता नहीं है। बहुत मुश्किल होता है सोसाइटीज़ की चीज़ों को सुनना, उसके बाद भी आप सफ़र कर रहे हो, जब हर तरफ से नेगेटिविटी आ रही हो और आप सिंगल इंसान पॉजिटिव ही निकल रहा हो। सो वो बहुत मुश्किल होता है वो वक्त, लेकिन मैंने शायद वो वक्त अब गुजार लिया है। सो अभी सो प्राउड कि यस आई एम लाइक अ वुमेन, एंड जो मुझे चाहिए था एटलीस्ट वो तो एटलीस्ट मैं अब हूँ, तो बहुत प्राउड फील होता है उन सब चीज़ों। बचपन की बात करें, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ कि नहीं यार कि आई हैव टू ब्रेक द शैकल्स? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जब हम छोटे होते हैं ना, मतलब हमें उस वक्त बिल्कुल भी पता नहीं होता, मतलब ना हम ज़्यादा सोच समझ सकते हो, लाइक फैसले लेने की कोई उम्र भी नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। सो मतलब उस टाइम तो हमें जो दिल आता है वो कर रहे होते हैं कि हाँ कपड़े पहन लिए, खेल लिए, हम लड़की वाली गेम्स खेल रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। मॉम डैड सोसाइटी उस टाइम कुछ भी नहीं बोलती, बिकॉज दे नो कि हाँ यार बच्चा है, करने दो, करी जा रहा है, ठीक है, बड़ा होके ठीक हो जाएगा। तो वो जो चीज़ होती है ना, मतलब छोटे होते वो थोड़े जगहों में होती है और जब हम बड़े होते हैं वो स्पेस बढ़ता जाता है अंदर ही अंदर। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि हम जब एज होते जाते हैं, थोड़ी एज बढ़ती जाती है, तो वो चीज़ें अंदर बढ़ती जाती हैं और जो फीलिंग्स हैं यू कान कंट्रोल। मतलब आप फीलिंग्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी रोक नहीं सकते। आप दबा ज़रूर सकते हो बट उसको मतलब बंद नहीं कर सकते कहीं पे, तो या फिर उसको आने से नहीं रोक सकते। सो फीलिंग्स लाइक वो तो अनवांटेड चीज़ है कि हाँ वो तो हैं, तो है, रहेंगी ही ऑब्वियसली ना। सो छोटे हुए थे तो हमें तो पता नहीं चला कि मतलब चलो हम 10-15 साल तक तो ये स्कूलिंग करते रहे तो पता नहीं चलता था। मुझे स्टिल जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करती थी तभी भी नहीं पता चला। मतलब क्या होता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में बड़ा सही सब कुछ सिस्टम होता है वहाँ पे ना, तो मतलब ना टीचर्स इतना ज़्यादा हमें कुछ बोलते हैं, ना वो बच्चे भी जो ऑलरेडी बड़े एजुकेटेड हैं सबके सब, कभी किसी ने कुछ वहाँ पे बोला नहीं। बट मुझे पता था कि मैं थोड़ा सा तो डिफरेंट हूँ, बिकॉज मुझे लगता है था कि मतलब मेरी अंदर फीलिंग्स वो है ही नहीं जो एग्जैक्टली होनी चाहिए लड़के के अंदर, क्योंकि मैंने कभी वैसा फील ही नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, मतलब छोटी छोटी बातों पे मैंने नखरे दिखाने, गुस्से हो जाना मम्मी से, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं करना है ना, वो चीज़ें चलती रही। मतलब मुझे कभी मैं इमोशनल भी बहुत कि मतलब
कुछ भी थोड़ा सा डांट दिया बस मैंने रोने रोने बैठ लग जाना जाना। है कि भाई मैं बेड का कोना पकड़ लिया, बैठ रो रही हूँ मैं। तो मतलब मम्मा कहती लड़कियों की तरह मत बिहेव कर, तो मतलब वो थोड़ा सा लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब फिर जब हम दिल्ली में मैंने दिल्ली में जब मैंने 7th तक स्टडी की, तो तब क्या था कि मैं वही 13-14 साल की होंगी इस टाइम पे। तो अब मुझे थोड़ा सा तो लगा कि कुछ तो डिफरेंट चल रहा है, मतलब क्योंकि मुझे अलग तरह से चीज़ें पसंद थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आम जैसे लड़कों को लड़कियां पसंद आती होंगी, मुझे थोड़े से लड़कों की तरफ अट्रैक्शन थी कि नहीं यार, मतलब मुझे लड़कियों की तरफ कुछ था ही नहीं। तो मतलब खुद से ही पूछना कि मतलब ऐसा क्यों चल रहा है ये सिस्टम, अगर मैं ट्राई भी करूँ तो नहीं भी होता था। हाँ, मुझे उनके साथ खेलना कूदना मतलब घूमना ज़रूर पसंद था, बट एक लाइकिंग होता है ना ऑपोजिट जेंडर वाला, वो बिल्कुल भी नहीं था। लड़कियों वाले कपड़े पसंद है मुझे, मेकअप्स के सामान पसंद है, खुद पे मेकअप करना अच्छा लगता था। मतलब वो चीज़ें क्या हुआ चलती रहती थी धीरे धीरे। बट पता क्या होता है, जब एक आप अच्छी सोसाइटी और अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, तब हम उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ना ही लोग ज़्यादा देते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी फैमिली की कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। वी आर बिलोंग लाइक एन मिडिल क्लास फैमिली। सो मम्मा यहाँ पे आ गए, पंजाब में आ गए, तो मुझे उठा के सरकारी स्कूल में डाल दिया। तो अब क्या हुआ कि कॉन्वेंट स्कूल से, दिल्ली पब्लिक स्कूल से सरकारी स्कूल में जाना, मुझे लगता है कि मैसिव चेंज है, बहुत सब बड़ा कुछ बदल दिया, मेरी गया। दुनिया बदल दी। एग्जैक्टली, सोसाइटी बदल गई, दी। लोग बदल गए, बिल्कुल। आसपास के पड़ोस में जो थे उनकी मेंटालिटी, क्योंकि जब हम क्या कहते हैं, हम जब एटमॉस्फेयर बदलते हैं ना, तो चीज़ें बदल जाती हैं। और जब हम यहाँ सरकारी स्कूल में आए हैं, तो मतलब मुझे विद इन वीक पता चल गया कि मतलब या फिर मैं मरी जाऊंगा या फिर मेरे को स्कूल नहीं जाना। क्योंकि आई डोंट नो, जो बॉयज़ थे वो गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे और उन्होंने गलत तरीके से बुलाना शुरू किया। मतलब दिल्ली में मतलब स्कूल में इतना ज़्यादा एजुकेशन और ऊपर से इतना शरीफ हम लोग, हमें कुछ नहीं पता कि गालियाँ क्या होती हैं, ये क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता था। मतलब एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करना कि घर पे ही रहना, पढ़ाई करना, ट्यूशन जाना, घर आना, यही हमारी ज़िंदगी थी। यहाँ पे आई डोंट नो, लोग इतने बुरी तरीके से ट्रीट करने लग पड़े, रास्ते पे चलते टोट मार रहे थे। मतलब बी लाइक अ बॉय, बट आई थिंक मेरे चाल में थोड़ी प्रॉब्लम थी, या फिर मतलब मेरे बोलने में थोड़े सा था कि फेमिनन था, थोड़ी सी वही थोड़ी सी फेमिनन थी ना। तो लोग ने मेरे बोलना, लड़कियों की तरह क्यों बातें करता, लड़कों की तरह कर, उनकी तरह चल, ऐसे मतलब ऐसे सीधा हो गया चल, ऐसे ऐसे क्यों चल रहे हैं। मतलब वो चीज़ें कभी किसी ने टोकी नहीं। और जब अचानक लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया, तो मैंने भी सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, एक बार कोई बोलता है तो ठीक है, 2 बार बोलता है। जब मेरे यहाँ पे जब मेरे रिलेटिव्स बोलने लग पड़े कि हाँ इसकी और लड़कियों जैसी वॉइस है ना, और इसके चाल चलन वैसे हैं, तो मतलब मैंने खुद सोचना शुरू कर दिया कि मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ठीक है, बचपन से लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं था, बट यहाँ पे आने के बाद विद इन 6 मंथ इतना ज़्यादा डॉन्टिंग, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मतलब अब मैं उस तरीके का दिमाग तो था नहीं इतना मैच्योर कि हम लोग को कुछ समझ में। तब एज क्या थी आपकी? इट्स लाइक 14-15 समथिंग है ना। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आई ट्राई की थोड़ा, ठीक है, मैंने थोड़ा ट्राई किया कि हाँ ठीक है, स्ट्रेट बनना है, थोड़ा अच्छे से चलना है, थोड़ी सी हैवी वॉइस निकालनी है। तो मतलब कब तक करते रहे, है ना, 2-4 दिन किया, उसके बाद फिर शुरू हो गया सब कुछ वैसा। तो मतलब मेरे को था, मैं मतलब ढीठ होता है ना बंदा, वैसा हो गया। तो मतलब चल ठीक है, बोलने दो। तो मम्मा कहते हैं चल ठीक है, मम्मा ने सीधे बोला कि तू जैसे है वैसे ठीक है, किसी के प्रेशर में आके अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना। क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि हम स्टडी पे जोर नहीं दे पाते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूरा दिन इतना टॉन्टिंग के बाद ऊपर से जब कल स्कूल में जाना है, फिर उनकी बातें सुननी है, तो वो चीज़ें शायद हमारे दिमाग में रहती हैं कि कल हम सुबह स्कूल जाएंगे तो पीछे डेस्क वाले मुझे इस नाम से बुलाएंगे और वो मुझे मतलब मारेंगे, या फिर मेरे को गालियाँ निकालेंगे, या फिर इंटरवल में मुझे परेशान करेंगे। तो क्या हुआ कि मेरी ना टीचर्स के साथ बड़ी बनती थी, मैथमेटिक्स या फिर ड्राइंग टीचर के साथ। मैंने उनको बोलना सर को कि सर आप ऐसा करो, जब इंटरवल होता है प्लीज़ मैं आपके ऑफिस में आके बैठ जाता हूँ, या फिर वहाँ पे खाना खा सकता हूँ। कहते क्या हुआ? मैंने कहा सर मुझे ऐसे परेशान करते हैं। चलो ठीक है, आप आ जाना। ठीक है, मैंने वैसे गुजारे 8 महीने, मतलब मैंने अपने स्कूलिंग टाइम में 1-1.5 साल वैसे गुजारी कि मैंने कभी इंटरवल में अपने किसी फ्रेंड के साथ मैंने मतलब कोई प्ले नहीं किया, खेला ही नहीं, डर के मारे कि मुझे कुछ सुनना पड़ेगा, उन्होंने मुझे कुछ मारना है या फिर गलत हरकतें कैसे के टॉन्ट्स देते थे? टॉन्ट ऑब्वियसली मतलब कि तू मतलब ऐसे, मतलब यहाँ पे तो बड़े नामों से बुलाते हैं, टेम्पू एंड ऑल समथिंग ना। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे को बोलते हुए भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट हो तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप उस वाहिगुरु जी ने जो भी चीज़ बनाई है, परमात्मा ने, हमें सब कुछ एक्सेप्ट है, तो हम क्यों नहीं, है ना। सभी जानवर सब
जब आप खुद बोलते हो कि सब उनकी रजा से बने हैं, तो हम भी उन्हीं की रजा से बने हैं, तो हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? मतलब डिफरेंट, हम डिफरेंट हैं, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है ना। या फिर अगर ऐसा भी होता है कि समटाइम लोग बोलते हैं इसको तो शौक है, मतलब ये कैसा शौक हुआ कि हम लड़के रहते हुए लड़कियों की तरह रहेंगे? मतलब ये कैसा शौक हो गया, है ना? मतलब ये शौक, मतलब मुझे तो ये बहुत हंसी आती है इस बात पे कि आप इतने एजुकेटेड होके और इतने मैच्योर होके आप लोग ये बोलते हो कि हमें शौक हो गया। मतलब किस बात का शौक है कि हम लड़के होके लड़कियों की तरह बिहेव करें? मतलब ये कैसा शौक हो गया? तो मतलब ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अगर मैं किसी स्ट्रेट आदमी को बोल दूं या फिर आपको बोल दूं आपको लड़कों की तरह रहना, आप हेयर कट कराओ, स्पाइकी हेयर कट रखो, है ना, लड़कों की तरह चलो, यू नो, एकदम बिल्कुल उनकी तरह रहो, रात को 12-2 बजे घूमो, कोई चक्कर नहीं है, आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा। और कोई शौक नहीं होता ये कोई शौक नहीं है। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, अगर उस परमात्मा ने बना ही दिया है हमें ऐसा, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर सिर्फ आपका है कि आप अदर चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो और हमें नहीं करते, है ना। और एक और बात है कि अगर आप कहते हो कि हमें जैसा बनाया है वैसा रहना चाहिए, तो या फिर हम वैसा रह सकते हैं या फिर हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। अपने तरीके से अच्छी बात है, बट कंफर्टेबल होना बहुत बड़ी बात है। इतना वक्त लगता है, मतलब मुझे लगता है इतने जन्म लेने के बाद एक बार जन्म इंसान का मिलता है, अगर उसमें भी खुश होके ना बिताएं तो इट मींस वो वेस्ट है। तो खुद को पाने के लिए हमने स्ट्रगल किया और उसमें अगर प्रो एंड कॉन्स आए हैं तो उसके जिम्मेदार भी और हम ही। देन क्या हुआ, जब स्कूलिंग चलो ख़त्म हुई, किसी तरह से ख़त्म क्या हुई, मतलब मैंने 10th किया, उसके बाद मैंने 11th भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से एडमिशन लिया, तो मेरी फैमिली की थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। देन फिर हमने सोचा चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे हुई लाइफ की, मैंने सबसे पहले मेहंदी लगाना शुरू किया कि चलो ठीक है, घर घर जाके मेहंदी लगाऊंगा तो दिन थोड़े 2 पैसे आ जाएंगे ना, बिकॉज हम बहुत गरीब थे उस टाइम पे। तो जब हम एक दिन में 300-200 भी आ जाते थे, हम वेरी हैप्पी कि शुक्र है थोड़ा सा पैसे आने शुरू हुए। तो मतलब मैंने 1 साल वो काम किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ना मतलब लोगों को देखा है कि हम जहाँ पे लगाने जाते थे, लोग हमें ऐसे पार्लर वाले बाहर बिठा देते थे कि आप अंदर मत बैठो, हमारा मेकअप देख लोगे और आपको मेकअप आ जाएगा। मतलब ये टाइम भी हमने सरवाइव किया है। और मुझे इतना लगा कि अब मेकअप की बात करो, काश मुझे इतना अच्छा मेकअप आए कि मतलब लोग तरसते हैं कि हाँ भाई मेकअप करवा रहे हैं तो इनसे करवाना है, सीखना है तो सीखना है। तो मतलब स्ट्रगलिंग टाइम वहाँ से शुरू हुआ मेरा। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਰਗੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 24-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਹਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੁੰਡਾ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ डिफरेंट ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बन जाते हो। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज शायद मैंने इस चीज़ों पे कभी बात नहीं किया। मुझे मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगी, सबको ऐसा लगता होगा मुझे खुशी मिली होगी, बट मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था। क्योंकि 25 साल तक 24 साल तक अपने आप को एक एज अ बॉय देखना, वो बियर्ड एंड मुस्टैंग में अच्छी तरह, अचानक बियर्ड क्लीन शेप कर देना, उसके बाद थोड़ा सा टॉप पहन लेना, जीन्स पहन लेना टाइट फिटिंग्स वाली, वो थोड़ा मेरे लिए डर वाला माहौल था। क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं बाहर निकली तो पक्का मुझे पहले से ज़्यादा गालियाँ बढ़ने वाली हैं लोगों से, लोग ऐसे एक्टिवा चला के भी जाऊँगी, लोग गालियाँ निकालेंगे। मैंने क्या किया था, मेरा सिर्फ एक ही प्लान था कि मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि मुझे अगर कोई कुछ बोल देना, गाली भी निकाल देगा ऊँचे ऊँचे से, तो मतलब मेरा रोना शुरू हो जाता है। लाइक अगर घर वालों का कोई ऐसा कर दे तो अगर लोगों ने टॉन्टिंग मारनी शुरू की तो एटलीस्ट मैं फिर से डिप्रेशन में चली जाऊँगी। बड़े मुश्किल से डिसीजन लिया है। तो उसके बाद क्या किया, मैंने डिसाइड किया मैं अपना बिजनेस स्टॉप करूँगी 2 साल के लिए। क्योंकि अगर मैं रन करती तो सबको पता चल जाता कि क्या चल रहा है ना। डेफिनेटली जब क्लीन शेप हुई, लेजर्स चल रहे हैं, निशान बने हैं और आप मेकअप करोगे तो सबको पता चल जाएगा ना। तो मैंने नहीं किया, मैंने सोचा बंद कर देना। तो आई विल क्लोज माय अकेडमी एंड सैलून फॉर 2 ईयर। सो क्या किया मैंने, और 2 ईयर नाल मेडिसिन चल रही हैं, बिल्कुल नाल मेडिसिन चलती पई सी। ते जब सबसे पहले मैं घर गई, मम्मा कहते अब क्या, मैंने कहा मेरे पास सेविंग है अच्छी खासी, अब मैं रहूँगी घर। मम्मा को होगी थोड़ी टेंशन कि इतना अच्छा बिजनेस बंद हो जाना अच्छी बात नहीं है। मम्मा को टेंशन थी। मम्मा ने एक बार बात किया, बट मैंने सोचा मम्मा नहीं, जब मैं दोबारा आऊँगी तो शायद मैं डबल पावर के साथ आऊँगी। एक तो सबसे पहली बात कि मैं एज अ वुमेन हूँ, और सेकंड जो मुझे चाहिए था मैं एज इट इज़ वही हूँ, है ना। तो मम्मा कहते चल, मैंने तेरे पे बहुत भरोसा किया था और अभी भी कर रही हूँ,
और अभी तक जितना किया था तूने प्रूव कर दिया है, अब तेरी बारी है, तेरा सफ़र अब शुरू होगा। उस दिन के बाद मम्मा ने भी बड़ा सपोर्ट किया। मतलब हमने क्या किया, मतलब हम रेंट पे रहते थे तो एक रूम वो सिर्फ मेरे नाम था। और आप बिलीव नहीं करोगे, ज़िंदगी का 1 साल मैंने, मुझे लगता है वो मेरे पूरी उम्र का सबसे बुरे टाइम चल रहे होंगे जो मैंने उस टाइम घर पे गुजारे। 24 घंटे मुझे रूम में रहना है, कभी बाहर नहीं निकलना, क्योंकि बाहर निकलते से पड़ोसी के घर होते थे, सामने सब बैठे होते थे, तो मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी। 24 घंटे घर में रहना, टीवी देखते रहना, वॉशरूम भी जाना तो एक बार सोच के जाना, नॉक करके मम्मा को पूछना कोई बाहर तो है नहीं। अगर कोई बाहर होता तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि क्लीन शेव होता था और मैंने पोनी कर रखी होती थी, तो मतलब लोगों को पता ना लग जाए इस वजह से। तो 1 साल मैंने ऐसे गुजारे हैं 4 दीवारी के अंदर। आप बोल सकते हो 1 साल की मुझे जेल हुई थी। आप तो वो तो अलग टाइप का डिप्रेशन होगा। बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ, बट उसके साथ एक खुशी थी जो साथ में चल रही थी कि आई एम इन प्रोसेस और मैं अच्छा फील कर रही हूँ। वो जो होता है ना, जब आप ठान लेते हो कि वो चीज़ें करनी है और जो चीज़ मुझे चाहिए थी जब वो मिल रही होती है, तो शायद उस चीज़ के साथ थोड़ी सी खुशी भी मिल रही थी, बट खुशी के साथ साथ वो जो डिप्रेशन वाला मूवमेंट था ना, वो बहुत बुरा था। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि हार्मोन्स प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग पीपीडी से ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा स्विंग होते हैं। और स्विंग में तो मतलब कभी अगर मुझे किसी ने गुस्सा दिला दिया तो मैंने सर मार देना दीवार में, मतलब फोड़ दो, सर फोड़ दो, किसी को मार दो या फिर दरवाजे पे मुक्का मार दो, ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। मतलब इतना गुस्सा आता है कि कुछ कर ले इंसान। जब डोसेस ज़्यादा होते हैं तो और प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या था, मम्मा 24 घंटे, मम्मा जॉब पे जाती थी तो घर में अकेले रहना पूरा टाइम, तो वो चीज़ें मैंने सफ़र किया हुआ है और बहुत बुरा था। और सबसे बड़ी बात, मम्मा के बाद मेरा जिसने सबसे ज़्यादा साथ दिया ना, मेरे भाभी जी। कहते ना भाभी मम्मी के जैसे होती हैं, और उन्होंने पूरा अपना हक अदा किया। और जब उनकी शादी होके आई थी तो मुझे ज़रा सा भी नहीं लगा था कि उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट करना है या फिर बोलना कि नहीं भैया तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। और अगर मुझे किसी ने सबसे पहले दीदी बोला, वो मेरे भाभी माँ ने। मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई ना, किसी मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है वो, बट वो जो सपोर्ट था ना, मुझे क्या, मैंने उनको बोला कि ये ना तुम्हारा एजुकेशन सर्टिफिकेट है जो तुमने मुझे सपोर्ट किया। और मम्मा के बाद भाभी ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि सारा टाइम फिर भाभी के बजाय मम्मा ने एक्सेप्ट करना। 6 महीने बाद फिर भाभी जी आ गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उस बुरे टाइम में मेरे भाभी जी ने बहुत साथ दिया मेरा। और मतलब उन्होंने मेरे को दीदी बोलना था, आई फील सो गुड। मतलब ज़िंदगी में पहली बार कोई मुझे ऐसा कुछ बुला रहा है, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वो डिप्रेशन वाला टाइम ना थोड़ा कम लग रहा था। मम्मी ने कहा मेरा बेटा नहीं मेरी बेटी है। बिल्कुल, वो आप बोलते हैं, मतलब आफ्टर ऑपरेट उनको थोड़ा पहले शुरू से वो मुझे बेटा ही बोलते थे, कभी उन्होंने नाम से नहीं बुलाया। तो जब मैं अब कभी जाती हूँ तो वो अभी भी मुझे बेटा ही बोलते हैं। मतलब वो कभी होता है ना, मम्मा को आदत होती है जब अगर बेटी भी घर आती है, हाँ जी बेटा कैसे हो, तो मम्मा शी ऑलवेज कॉलिंग मी बेटा। बट जब वो बात करते हैं, हाँ अच्छा तुम आओगी कि नहीं आओगी, वो आओगी वाला वर्ड्स ना, दैट्स सो रिलैक्सिंग फॉर मी कि हाँ फाइनली मतलब मम्मा ने वो चीज़ मतलब करनी शुरू कर दी जो मुझे पसंद है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी ही चाहिए थी मैंने, यही चाहिए जो मिल गया। अभी जो मैं हूँ ना, मैं बचपन से यही थी, बस मेरी बॉडी बदल गई है, आत्मा वही है। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा और बॉडी एक ही है। एक है। हाँ, तो नाउ मुझे ऐसा लगता है मुझे बचपन से यही चाहिए था जो मैं थी, और यही थी मैं बचपन से। मुझे खुशी नहीं है, बस मुझे प्राउड है कि मैंने अपने आप को पाया है। That's it. ग्रेट। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਨੇਜ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏ, ऐदा कोई इंसिडेंट होया? डेफिनेटली, मतलब मैं वही बता रही हूँ ना कि मतलब मेरा जो डिसीज़न ना लेना कि मैंने मतलब अपने आप को रिवील नहीं करना, ये रिलेशनशिप का ही डिसीज़न था। तो वैसे ये प्राइवेट चीज़ें मैं कभी एक्सप्लोर नहीं करती, बट मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि हम जैसे बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स या फिर गेज कम्युनिटीज़ में जो रिलेशनशिप्स में होते हैं, वो लोग कई बार क्या करते हैं कि प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ज़्यादा फट जाते हैं। मतलब कि हाँ हमने भी लड़की बन जाना है, हमने दिखाना है इनको कि मतलब कि मतलब हम भी इम्पॉर्टेंट है चीज़ों में। तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी वो चीज़ें किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करो। और मतलब बचपन से ही, मतलब मैंने बोला ना, मतलब हर एक चीज़ लड़कियों की तरह ही थी जो मैं अभी हूँ। तो मतलब ये मैं बचपन से ही थी और मुझे लड़के शुरू से ही पसंद थे और अभी भी पसंद है। सो शौक कभी बदले नहीं, सिर्फ बॉडी बदली है।
शौक वही थे तो बचपन में हैं और अभी भी वही शौक हैं और सिर्फ बॉडी बदली है दैट्स इट। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशस ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ Thank ਜੇ you so ਤੁਹਾਡੀ much. ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹ 30-40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗੀ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ क्योंकि बहुत जरूरी है। यार हम आपको बताना चाहते हैं कि कई बार मैं ना इस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ लाइक रेनबोज हमें ऐसे नहीं करते क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट होना बुरी बात नहीं है, डिफरेंट होना आई थिंक बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस परमात्मा ने हमें थैंक गॉड सिमिलर नहीं बनाया, हमें कुछ अलग बनाया है और हम कुछ अलग हैं लोगों से तो हम करके कुछ भी अलग दिखाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर अ रेनबोज। और मैं बस ये बोलना चाहूँगी जिन्होंने पैदा किया है अगर वही नहीं समझ पाएंगे तो हम सोसाइटी से क्या उम्मीद रखेंगे, है ना। तो मेरी माँ तो मेरा रब ही है और मैं उनके बारे में तो मतलब अगर मतलब तारीफ़ करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटी सी बात होगी। तो माँ तो भगवान ही होती है। और मैं बस एक बात बोलना चाहूँगी, घर में कोई और आपको समझे ना समझे आपकी माँ जरूर समझ आती है, थोड़ा वक्त लगता है मतलब कहते हैं ना एक जब झटका लगता है माँ बाप को तो थोड़ा वक्त दीजिए उनको, शायद वो 1 महीने साल तक समझ जाए। और अगर मतलब अगर आप नहीं बताओगे छुप छुप के जियोगे तो कब तक, मतलब एक ना एक दिन तो आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आप उन माँ बाप को नहीं बताओगे जिन्होंने आपको पैदा किया है तो आप क्या उस इंसान को बताओगे जो आपसे 4 दिनों से रह रहा है आपके साथ। आई थिंक मुझे ऐसे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपके सबसे ज़्यादा बुरे टाइम पे आपके माँ बाप आपके खड़े होते हैं आपके साथ में, उनको हर एक चीज़ का पता होना लगना बहुत जरूरी है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी माँ बाप को भी, कई लोग होते हैं कि माँ बाप बोलते हैं कि ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो गई है या फिर हौली-हौली बड़ा होएगा तो ठीक हो जाएगा। मैं बस उनको ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपकी जो रेपुटेशंस होती हैं, आपकी जो सोसाइटी में बनाई गई इज्जत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट एक तरफ अगर आपका बच्चा खुदकुशी कर ले या फिर घुट घुट के जी रहा हो, उससे बेटर है कि आप अपनी इज्जत को साइड में रख के आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। कल को कुछ उसने गलत कदम उठा लिया तो आप क्या करोगे, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपके इज्जत से बढ़कर आपके बेटे की जान हो सकती है, उनकी ज़िंदगी हो सकती है। तो बस मैं ये समझना चाहूँगी कि अगर आपको आपके बच्चे एक्सप्लेन करते हैं या फिर कुछ बताते हैं इस टॉपिक के बारे में कि हम अलग फील करते हैं तो प्लीज़ उसको ध्यान से समझिए और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से कंसर्न कीजिए। आई थिंक डॉक्टर्स आपको बेटर वे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी बच्चों को भी कि किसी और को बताने के बजाय, किसी और से डिस्कस करने के बजाय घर पे करिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी इंटरव्यू से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं और वो लोग दे कैन डिसाइडेड कि हमें भी करना है। बट करने से पहले ना अपने मम्मा और पापा को ज़रूर बताओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब ट्रैवल करोगे ना आप ज़िंदगी में, आपके पीछे ना आपके माँ बाप ही खड़े होंगे, कोई और नहीं। सो मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कंसर्न यू मॉम एंड डैड, देन यू कैन डिसाइडेड आपको क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत अमेजिंग इंटरव्यू सी, बहुत वधिया लग्या थोड़ी जर्नी बारे जान के ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ उस इंसान की जिंदगी जो शायद नॉर्मल जिन्हों आप नहीं कहते ट्रांसजेंडर गे लैसबीयन एलजीबीटी कम्यूनिटी कह देंगे तो उन्होंने जिंदगी किहो जी होंदी, उन्होंने किहड़े उतार चढ़ाव जिंदगी दे विच तो गुजरना पैंदा है। तो जेकर जिंदगी बदलण दी भी कोशिश करन अपनी तो फिर भी किन्नी औकड़ां आंदियां ने, किन्नियां मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। पर फिर भी जे हौसला होए, हिम्मत होए, उस शरीर नूं बदलण दी भी कोशिश कीती है तो ਉਹ 'ਚ भी सफल होए ने। पर बहुत समा लगता है, पेशेंस बहुत लगती है। तो ये उसे करके होंदा क्योंकि जो समाज नहीं एक्सैप्ट करता ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ 100,000 ਜਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਝੂ ਆਏ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਐਕਸੈप्ट ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਕੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੇਗੁਲ ਸਾਥੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ